जेलेंस्की के बीच तीखी बहसबाजी हुई। शुक्रवार को होने वाली इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें थी, जिसमें पता चलना था कि आखिर यूक्रेन का भविष्य क्या होगा। लेकिन बैठक के दौरान अचानक नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई और अधिकारी मौजूद थे। Don't tell us what we're going to feel. Stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. Except that there are disagreements. शुक्रवार को जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस मिलने पहुंचे, तो खुद ट्रंप जेलेंस्की का स्वागत करने के लिए नजर आए। जेलेंस्की कार से बाहर निकले, ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाया, उनके कपड़ों की तारीफ की और फिर उन्हें अंदर लेकर चले गए। यहाँ तक दोनों नेताओं के बीच जो गर्मजोशी दिखाई दी, उससे यही लगा कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स की डील तय है। और रूस यूक्रेन जंग का भी अब समाधान निकल ही जाएगा। लेकिन ओवल ऑफिस में जब दोनों नेता और अधिकारी बातचीत के लिए बैठे, तो दोनों नेताओं के बीच की गर्मजोशी थोड़ी ही देर में तकरार और बहसबाजी में तब्दील हो गई। मीडिया की मौजूदगी में ही दुनिया ने देखा कि कैसे दो देश के राष्ट्रपति आपस में बुरी तरह उलझ गए। दरअसल इसकी शुरुआत हुई अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से। जब उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि आपके यहाँ घरेलू समस्याएं हैं और आप अमेरिकी राष्ट्रपति का ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने अपमान कर रहे हैं। इस पर जेलेंस्की ने जेडी वेंस को जवाब दिया। First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. इतना सुनते ही ट्रंप झुंझला जाते हैं और इस बातचीत में शामिल हो जाते हैं और वो जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। ट्रंप के रवैये से जेलेंस्की हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहते। वो लगातार ट्रंप को जवाब देते रहते हैं। जेलेंस्की कहते हैं कि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन तब तक इस बातचीत में एक बार फिर से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की एंट्री हो जाती है। Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this.
You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की मीडिया के सामने खनिज डील पर चर्चा करने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान यूक्रेन में सीज फायर पर बातचीत चल रही थी, जहां ट्रंप जल्द युद्ध रोकने पर जोर दे रहे थे। लेकिन इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन अक्सर अपनी बात से मुकर जाते हैं। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात अमेरिका को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ झुकने से रोकने में कामयाब होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन को समझौता करना होगा, और इस समझौते में उसे देश के उस हिस्से को गंवाने के लिए तैयार होना पड़ेगा जिस पर पिछले 3 सालों के युद्ध के दौरान रूस ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ना तो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे रहा है और ना ही हथियार भेजने को तैयार दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि नाटो में यूक्रेन की एंट्री को भी ट्रंप नकार चुके हैं। ऐसे में जेलेंस्की के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन ट्रंप से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच जैसी बहसबाजी हुई, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के भविष्य को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक पूरी दुनिया में अब सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के दौरान कई प्रोटोकॉल पहली बार टूटते हुए दिखाई दिए, तो जुबानी जंग के बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस तक छोड़ना पड़ा। यहां तक कि यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के लिए लंच की व्यवस्था की गई थी, वो भी बाद में हटा दिया गया। मीटिंग के बाद अमेरिका और यूक्रेन के बीच मिनरल डील पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये डील फिलहाल के लिए रुक गई है। अब सवाल यह है कि क्या इस बहस के बाद कॉमेडियन रह चुके जेलेंस्की अब ट्रैजिक हीरो के रूप में जाने जाएंगे? रिपोर्ट देखिए। President, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment. Except that there are disagreements. रूस के साथ युद्ध में जूझ रहे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का ऐसा अंदाज पहली बार दुनिया ने देखा। शुक्रवार को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की खूब गरजे। कैमरे के सामने ही जेलेंस्की ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी। दोनों के बीच करीब 9 मिनट तक बहस चलती रही। आखिर में ट्रंप ने बहस रोककर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर भेज दिया। Okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. You see, I think it's good for the American people to see what's going on over there. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running low I on know. soldiers. Don't- don't please, You're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look,
If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जेलेंस्की का मोर्चा खोलना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बल्कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में खूब सुनाया। He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि एक कॉमेडियन से राजनेता बने जेलेंस्की ने कैमरे पर पूरी दुनिया के सामने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जवाब देने में कहीं से पीछे नहीं हटे। शुक्रवार को ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत जब तीखी बहस में बदल गई तो इस दौरान एक महिला के सिर पकड़े हुए ये फोटो जमकर वायरल हुआ। दरअसल ये वायरल फोटो अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत का है जिसका नाम ओक्साना मार्करोवा है। राष्ट्रपति के बीच हो रही बातचीत जब बहस में बदल गई तो ओक्साना मार्करोवा ने अपना सिर पकड़ लिया। तस्वीर को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बातचीत का बहस में बदलना यूक्रेन के लिए कितना बड़ा झटका है, मार्करोवा इसको भलीभांति समझती हैं। जेलेंस्की के साथ तकरार के बाद ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ बातचीत की और वहां से निकल गए, जबकि दूसरी ओर यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल करीब 1 घंटे तक दूसरे कमरे में इंतजार करता रहा। यूक्रेनी डेलीगेशन को उम्मीद थी कि खरीद सौदे पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और यात्रा को खराब होने से बचाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कह दिया। माहौल इतना खराब हो गया कि अधिकारियों का कहना है कि जेलेंस्की बिना खाना खाए ही व्हाइट हाउस से लौट गए। हालांकि जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका का धन्यवाद करते हुए लिखा कि यूक्रेन को स्थायी शांति की आवश्यकता है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप ने बैठक के बाद कहा कि जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस का अपमान किया, वो तब वापस आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हो। कुल मिलाकर शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक पूरी तरह असफल रही। इस मुलाकात के मुद्दे यानी रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका से खरीद सौदे पर कोई बात नहीं बन सकी और जेलेंस्की को काफी खराब माहौल में व्हाइट हाउस से निकलना पड़ा। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन की प्राथमिकता हथियार है। अमेरिका और यूरोप से मिलने वाली सैन्य मदद पर उसकी रक्षा टिकी है। हालांकि लंबे समय से उसकी आर्थिक स्थिरता के लिए मिनरल्स का निर्यात जरूरी है। यूक्रेन चाहता था कि मिनरल्स के बदले अमेरिका उसे हथियार और आर्थिक मदद देता रहे, लेकिन आज जब ये डील रुक गई तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे के बीच संयुक्त राष्ट्र के कई यूक्रेनी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया है। यूएन महासचिव गुटेरेस ने कहा कि अमेरिका के समर्थन में कमी के कारण वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को निलंबित किया गया है। डील के रद्द होने के बाद माना जा रहा है कि इससे जेलेंस्की को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी सरकार को युद्ध के बीच आर्थिक स्थिरता के लिए इस डील से उम्मीदें थी। हालांकि ट्रंप के लिए ये एक कूटनीतिक असफलता हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को चीन के मुकाबले के लिए यूक्रेन के खनिजों की जरूरत थी। ये बात अलग है कि अमेरिका के पास अन्य रिसोर्स भी हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए ऐसे मौके काफी कम थे। ऐसे में कहा जा सकता है कहीं न कहीं मिनरल डील का रद्द होना जेलेंस्की के लिए ज्यादा बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि इस घटनाक्रम ने अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद पर अब अनिश्चितता भी पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बहस के बाद अब यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए अपना समर्थन जाहिर कर दिया है। यूरोपीय नेताओं ने बयान